Hello everyone. Am I clearly audible to everyone? I hope I am clearly audible and visible. All good? Very good morning to everyone. I hope I am clearly audible and visible. And in case you have any questions from the last things that we had discussed, I'll want everyone to make sure that you're asking your questions. Very good morning, Puspanjali beta. All good? Good morning, Renu. A very good morning. A very good morning, Govind. Good morning, Abhishek. So everyone settle down. Great, great Puspanjali beta. A very good morning, W. खुश रहिए. So we'll be today looking at some of the global initiatives, and in that we'll be covering one of the important aspects, that is the Man and the Biosphere program, MAB. The Man and the Biosphere program. And if you look at the name itself, you can easily understand that this is a program which wants harmony between the man and its environment, and that is the biosphere. ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसी चीज पे फोकस किया गया है. ओके, सो इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, साइंटिफिक स्टडीज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द एनवायरमेंट. Scientific studies for the improvement of relationship between man and environment. The scientific studies for the improvement of relationship between man and environment. Okay, special beta, खुश रहिए. Very good morning, everyone settle down. Okay, so और इसका मोटिव है कि ग्लोबली ये चीज हो. ठीक है, वी वांट टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द एनवायरमेंट ग्लोबली. सो यू कैन ऐड वन मोर टर्म, दैट इज ग्लोबली. Okay, and if we look at this approach to improve the relationship with the help of the scientific studies, we can say that it started in 1970s. ये 1970s में start हुआ था. Okay, a very good morning Gangesh beta. And it says that if we look at only specific things, small things, then we'll not be able to find it. Okay, अगर हम सिर्फ ये कहें कि वी हैव टू अप्रोच फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन थिंग ओनली, दैट इज एनवायरमेंट, देन इट कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर. सो द अप्रोच हैज टू बी इंटरडिसिप्लिनरी. ठीक है, सो इट कॉल्स फॉर interdisciplinary approach. और आज की डेट में आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ, तो दिस इज समथिंग विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स जो आज आप जानते हैं. ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ने ही उस चीज की नींव रखी थी. इट स्टार्टेड विद द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. ओके, सो इट कंबाइंस द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस. जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो नेचुरल साइंस, social science, okay, the other this thing,
what you call as streams like geography, economics, everything will get included. Okay, so economy, geography, and it goes on, statistical models, so mathematical calculations and everything is included in this program, so as to create a balance, overall understanding of the biosphere, so that harmony can be maintained between human development and the environment. Okay, so maybe you can write down few lines on this. MAB is an intergovernmental scientific program. MAB is an intergovernmental scientific program that was proposed in the 1970s. That was proposed in the 1970s. That was proposed in the 1970s. Full stop. It bets for an interdisciplinary research. It bets for an interdisciplinary research. It bets for an interdisciplinary research agenda and capacity building. Research agenda and capacity building. Capacity building that target the ecological, social, ecological, social and economic dimensions. Ecological, social and economic dimensions. It means that indirectly it is looking forward to the sustainable development concept. ठीक है, indirectly इसमें अपने आप ही sustainable development included है. Okay, ecological, social and economic dimensions of biodiversity loss and the reduction of this loss, of biodiversity loss and the reduction of this loss. Change the para. The agenda of the MAB, the agenda of the MAB program, the agenda of the MAB program is defined by its main governing body. यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें मेन गवर्निंग बॉडी है. इट इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है. बाय इट्स मेन गवर्निंग बॉडी, by its main governing body, the International Coordinating Council, the International Coordinating Council. ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रख लेंगे. The International Coordinating Council, in consultation with the broader MAB community, मतलब जो लोग और इन्वॉल्व हैं इसमें. Okay, and this is something important which can be who decides the agenda. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, so you need to know this thing. Okay, to implement its agenda, the committee depends on its network of world network of biosphere reserves. Depends on world network of biosphere reserves.
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन आना होगा तो इसमें से हो जाना चाहिए, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। The biosphere reserves, okay, so biosphere reserve everybody must have heard of, but ये कॉन्सेप्ट भी कैसा है, ये 1971 में यूनेस्को की तरफ से आया था, okay, it was defined in the year 1971, okay, international coordinating council of UNESCO, international coordinating council, it defined this thing, okay, तो इसने एक डेफिनेशन दी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको लिख लीजिए, ओके, एक दो लाइन लिख लीजिए। द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को, द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को introduced the concept of biosphere reserve in the year, introduced the concept of biosphere reserve in the year 1971, and defined this as an area, defined this as an area which concerns itself, defined this as an area which concerns itself with conservation of the natural areas, with conservation of the natural areas and of the genetic material they contain, and of the genetic material they contain, ठीक है। तो आपको सिर्फ एरिया को नहीं बचाना है, उसकी जीन्स फ्यूचर में भी वो बचा रहे, इट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल इन द फ्यूचर, ये भी इंश्योर करना है, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन वाज फाइनलाइज्ड इन द ईयर 1972, ठीक है, इसमें और चेंजेस किए गए थे, ओके। एंड this biosphere reserve network was launched in the year 1976 under this only, okay, so you can write down the biosphere reserve network, the biosphere reserve network was launched in the year 1976, biosphere reserve network, okay, was launched in the year 1976, okay, and now अगर आप देखते हैं तो टुडे द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट ओनली नेचुरल बट कल्चरल लैंडस्केप। जब भी हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, ओके, इट हैज टू एलिमेंट्स, वन इज नेचुरल एंड other one is cultural, okay, so it like आज हमने जैसा डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो एनवायरमेंट और ह्यूमंस के बीच में आप कैसे सामंजस्य ला सकते हैं, हाउ यू विल मेक दैट द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स और द प्लांट्स दे लिव इन हार्मनी अंटिल यू टच दिस सेगमेंट ऑफ कल्चर। अगर ये हमारा कल्चर का ही पार्ट हो तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, ओके, वी विल प्रोटेक्ट दैट थिंग। जैसे सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इट इज कल्चरली, पीपल आर कल्चरली कनेक्टेड विद द सैक्रेड ग्रुप्स, सो दे प्रोटेक्ट दिस थिंग। तो बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। सो राइट डाउन
Since 1976, Biosphere Reserve is an international designation by UNESCO. Biosphere Reserve is an international designation by UNESCO for the representative parts of natural and cultural landscapes. For the representative parts of the natural and cultural landscapes, representative parts of the natural and cultural landscapes extending over large area, natural and cultural landscapes extending over large area of terrestrial or coastal marine ecosystem, large area of terrestrial or coastal marine ecosystems, terrestrial or coastal marine ecosystems, or a combination thereof, okay. So definition exact हमने क्यों लिखी है? Because sometimes you'll find these statements. If you look at the previous year question, you'll discover that many a times they are simply focusing on the definition, और वहीं गलती हो जाती है. ठीक है, क्योंकि जब आप नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसा लिखेंगे या नेचर और कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसा लिखेंगे, द स्टेटमेंट्स लुक मोर और लेस सेम. तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है. ओके, so there are certain things associated with Biosphere Reserve. There are certain things associated with Biosphere Reserve and they have their own characteristics. सिर्फ हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल देंगे तो काम हो जाएगा. ओके, सो राइट डाउन ईच बायोस्फीयर रिजर्व. कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट, ईच बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड. Each biosphere reserve are protected areas of land. Each biosphere reserve are protected areas of land. Each biosphere reserve are protected areas of land or coastal environment. Protected area of land or coastal environment wherein people are integral part of the system. Wherein people are integral part of the system. People are integral part of the system. यानी ये क्या है, लैंड पे भी हो सकता है, मैरीन इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, यानी ओशियंस में, और इसमें ह्यूमन को पार्ट माना जाता है. ओके, टुगेदर दे कंस्टिट्यूट, राइट डाउन, टुगेदर दे कंस्टिट्यूट ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क linked by international understanding. Together they constitute a worldwide network. Together they constitute a worldwide network linked by international understanding. Together they constitute a worldwide network linked by international understanding. Linked by international understanding.
linked by international understanding for exchange of scientific information, for exchange of scientific information, for exchange of scientific information, for exchange of scientific information. ठीक है. Second point, the network includes all the significant biomes. The network includes all the significant biomes around the world. यानी biomes को भी protect कर रहे हैं वो directly. Biomes around the world. Okay. There are certain categories of the biosphere reserves. Third point, there are certain categories of biosphere reserve. There are certain categories of the biosphere reserve डैश करके लिखिए. BRs that represent the natural biomes, BRs that represent natural biomes, those which protect unique communities, those which protect unique communities, those which protect unique communities of biodiversity, Priyanshu beta, a very good morning. Of biodiversity. Third one इसी में, they represent harmonious landscapes. They represent harmonious landscapes resulting from traditional pattern of land use. Resulting from traditional pattern of land use. Resulting from traditional pattern of land use. Next point, this will have non-manipulative core area. This will have a non-manipulative core area. नॉन मैनिपुलेटिव मतलब कोर पे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, वो नेचुरल ही रहने दिया जाएगा. ओके, इट इज वन ऑफ द कंडीशंस. ओके, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट डिग्रेडेड एरियाज, रिप्रेजेंट दोज डिग्रेडेड एरियाज which are restored, those degraded areas which are restored, and hence they are representing that the degradation of the biodiversity can be reversed. Degradation of the biodiversity can be reversed. Okay. Now Biosphere Reserve भी आपने बना लिया है, सब कुछ कर दिया. ठीक है, आपकी एक कैटेगरी भी आपने बना ली कि क्या क्या आप करना चाहते हैं. These are keywords that you need to remember because UPSC is not going to ask you long statements. Probably they'll ABCD में इनमें से कोई उठा लेगा and you'll have to identify the categories. Okay.
कि कैटेगरीज में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट the functions, okay, what do you think, what can be the functions of the biosphere reserve? क्या क्या function biosphere reserve करेगा? Now you have read everything. Ecology, environment, उनका रोल आपको पता है. functions क्या होंगे इसके? what are the functions that anybody would want to achieve from this? ठीक है, अगर पूछ लेता है, मेंस में भी आ सकता है, the different functions of the biosphere reserve. So what you'll do? अब उसकी डेफिनेशन में ही मैन इन्वायरमेंट हार्मनी है, ओके, तो वो तो होगा ही इसमें, लेकिन वो छोड़ने के बाद, ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव consciously done. It means we want to protect the landscape. Okay, and when we are protecting the landscape, it means that we are looking at the natural element and the cultural element as well. Priyanshu beta, a very happy birthday. Okay, may Almighty helps you to get all the success that you want from life. Okay, these are my blessings for you today. A very happy birthday. Okay, protect the landscape. हाँ रेनू बेटा, गंगेश, बिल्कुल प्रोटेक्शन, डेवलपमेंटल पर्पस. ओके, सो फंक्शंस में प्रोटेक्शन ऑफ द लैंडस्केप इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस, जहां आप नेचर को भी बचा रहे हैं, कल्चर को भी बचा रहे हैं. ओके, बट व्हेन वी आर मेकिंग दिस थिंग, it becomes easier for us to watch the problems. हाँ गंगेश, वेरी गुड. तो नेचुरल प्रॉब्लम्स को भी आप क्या है कि देख सकते हैं, द चेंजेस. ओके, सो यू कैन इजीली मॉनिटर द नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. And its impact. This is the thing that we want to understand through the biosphere reserve. हम ये समझना चाहते हैं कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या हो सकता है. Stay blessed प्रियांशु बेटा. So प्लस अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व जैसा जानते हैं, एंड यू नो दैट देयर आर पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट, it means that you'll also have an opportunity to better utilize the traditional systems that have developed in that area. ठीक है, तो आप easily traditional resource use भी सीख पाएंगे. Okay, understanding and utilizing traditional resource systems. Okay, so here we are talking about the said objectives. ये specifically functions mention है, ठीक है, जब इसे define किया गया था. Okay, and to understand the functioning of the ecosystem, functioning of the ecosystem, एंड जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो हमने प्रोसेसेस भी पढ़े थे. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ द इकोसिस्टम. सो दीज आर 5 सेड ऑब्जेक्टिव्स, 5 फंक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व जो हम समझना चाहते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट दीज 5 आर मेजर वंस बिकॉज ऑफ विच दिस बायोस्फीयर रिजर्व वाज डेवलप्ड. ओके, अब बात आती है कि why we are studying this being in India, because this is an important concept for India as well. Okay, and India adopted this thing 10 years later. ठीक है, जब इसे डिफाइन किया गया, like we had seen 1976 it was clearly defined and
adopted around the world as a global initiative. So national initiative की बात करते हैं अगर हम, ठीक है. So biosphere reserves in India. So it was in the year 1986, and this is important date. Usually I don't ask you to remember the dates, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि ये डेट याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे. So the National Biosphere Reserve Program was launched in this year. Okay, and you need to remember this date. ये पूछा गया है और फिर से पूछा जा सकता है. Okay, and now the world objectives. वर्ल्ड में किस लिए बनाया गया है ये तो है ही. Okay, but there were certain aims and objectives that the government of India wanted through this. Okay, so the aims and the objectives of the program, ये बहुत बार पास्ट में पूछा गया है और ये बहुत सिंपल है. दिस इज रियली सिंपल. हाँ गोविंद बेटा आया था. हाँ, तो कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही. एसएससी में आया हो तो वो हर एग्जाम में पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं. एंड दे यूपीएससी ने भी कई बार ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन पूछा है, एम्स पे पूछा है. सो दे विल डेफिनेटली आस्क ए क्वेश्चन. ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स. कुछ लोग आप में से बाकी एग्जाम भी दे रहे हैं तो उनको भी इससे फायदा होगा. ओके, so first write down about the aims of the National Biosphere Reserve Program. Aims of the National Biosphere Reserve Program. First point, to serve as a aims. पहले हम aims देख रहे हैं. To serve as a wider base for conservation. To serve as a wider base for conservation of the entire range of living, of the entire range of the living resources and their ecological foundation. Entire range of living resources and their ecological foundation. ठीक है, मतलब सिर्फ लिविंग स्पीसीज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसको जो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू डिसाइड टू प्रोटेक्ट ए प्लांट, देन the roots want better soil, nutrient. If you want to protect the tiger, it needs food, तो डियर को भी प्रोटेक्ट कर लिया. दैट काइंड ऑफ थिंग कि जो जो उसे नीड है, वाटर चाहिए लिविंग स्पीसीज को, यू टेकिंग केयर ऑफ द वाटर एज वेल. ओके, नेक्स्ट इज एम टू ब्रिंग आउट रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम्स, मतलब एग्जाम्पल्स, मॉडल्स क्रिएट करना. टू ब्रिंग आउट रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम्स अंडर कंजर्वेशन, ठीक है, जहां बहुत सारा लाइफ है, थ्राइव कर रहा है, उसको और बेटर करना. टू ब्रिंग आउट रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम अंडर कंजर्वेशन, and sustainable use on a long term basis, and a sustainable use on a long term basis, and a sustainable use in a long term basis. Okay, third, to ensure participation of the local inhabitants, जो लोग वहां रहते हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना. To ensure participation of the local inhabitants for effective management, and also to generate livelihoods for the people, and also to generate livelihoods for the local people. थर्ड, नेक्स्ट वन जो भी पॉइंट आपने लिखा है, टू इंटीग्रेट द साइंटिफिक नॉलेज, with traditional knowledge of conservation and management. With the traditional
methods of conservation and management. ठीक है. Now objectives. Let us talk about the objectives. Objectives की बात कर लेते हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये क्लियर किया है कि दे आर नॉट अल्टरनेटिव्स. ऐसा नहीं है कि अब बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी हटा दो, नेशनल पार्क हटा दो, जियोलॉजिकल पार्क्स हटा दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम. ओके, दे आर नॉट अल्टरनेटिव्स. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको बेटर प्रोटेक्शन अभी भी देंगे, बट बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाएंगे. ओके, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया था. ओके, सो राइट डाउन, बीआरस आर नॉट treated as a substitute. BRs are not treated as a substitute or alternative to already existing protected area, but they are seen as reinforcement to the existing protected areas. Already protected areas. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. BRs in India are meant to conserve the diversity and integrity of the plant and animals. Within the natural ecosystem. Natural को अंडरलाइन कर लेंगे. Within natural ecosystem. ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा नहीं है कि जाके 4 लकड़ी लगा दिया और उसे पेड़ समझे, जैसा आप जू में देखते हैं पैंडा बेचारा लटका रहता है लकड़ियों पे, वो ओरिजिनल पेड़ भी नहीं होते हैं. तो वैसा हम नहीं करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में ही करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक डाइवर्सिटी. Of species. To protect the genetic diversity of the species. These are treated as areas where scientific research can help in increasing the understanding, of the biosphere. Next, to provide education and training. To provide education and training to the officials, non-officials and local people. Education and training to official, non-officials and local people in order to better manage and conserve the entire ecosystem. Okay. Next, to ensure sustainable use of the natural resources. Okay. Now, अब बायोस्फीयर रिजर्व आपका मन किया आप गए,
कहीं पे आप जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा जंगल है, डिक्लेयर इट एज ए बायोस्फीयर रिजर्व, विल दे डू इट? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इन 1979, ओके, इन द ईयर 1979 दो कंडीशंस दी गई थी, हमारे इंडियंस ने नहीं दी थी, ठीक है। तो ईयर 1979 एक्सपर्ट कोर ग्रुप, ऑफ कोर्स हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं, ओके, दे हैड गिवन टू प्राइमरी क्राइटेरियाज and two secondary criterias. Until and unless this is fulfilled, तो आप किसी एरिया को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ओके। अब प्राइमरी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, सो यू डिक्लेयर एन एरिया एज अ कोर एरिया, जो बड़ा ही नहीं है, जहां क्या है कि बार बार जानवर बाहर निकल जा रहा है, इट विल बी यूजलेस, ठीक है। सो कोर एरिया शुड बी बिग इनफ टू एटलीस्ट प्रोवाइड द थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर देयर। बार बार जानवर वहां से बाहर ही भाग रहा है, तो वो कैसा कोर एरिया है, ओके। तो वहां अनटच्ड रह के, वहां से बिना बाहर ज्यादा निकले हुए भी अगर उसको सफिशिएंटली मिल रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो राइट डाउन प्राइमरी क्राइटेरिया में पहला पॉइंट, द कोर एरिया शुड बी टिपिकल ऑफ ए बायोजियोग्राफिकल यूनिट, typical of a biogeographical unit and large enough typical of a biogeographical unit and large enough to sustain the viable population, to sustain the viable population, to sustain the viable population at each trophic level. ओके, अब घास नहीं बचा पा रहे हैं और बकरी बचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और बकरी नहीं बचा पा रहे हैं, डियर नहीं बचा पा रहे हैं, शेर बचा लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ओके। सो वायबल पॉपुलेशन जो है उसको सस्टेन करने लायक वो जगह होनी चाहिए, ओके। प्लस मिनिमल डिस्टर्बेंस होना चाहिए, इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड विद मिनिमल डिस्टर्बेंस। वहां क्या है कि ह्यूमंस को भी, अगर कुछ लोग रहते भी हैं या मोस्टली ना रहें तो और बेटर है, ओके, बट रहते भी हैं तो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दे आर इन हार्मनी विद द एनवायरनमेंट, लिविंग देयर फॉर thousands and thousands of years, okay, that kind of areas. So write down the site must contain an effectively protected site, that is effectively protected and undisturbed, that is effectively protected and undisturbed or minimally disturbed, or minimally disturbed, यानी इंटरफेरेंस हो भी तो कम हो, ना हो या फिर कम हो, ओके। मिनिमली डिस्टर्ब कोर एरिया and should also have additional land for research, and scientific studies, additional land area for research and scientific
स्टडीज, ठीक है। अगर क्योंकि आप सारा ही कोड डिक्लेयर कर देंगे तो फिर रिसर्च कहां करेंगे, तो वैसी जगह भी होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या है? अभी आप एक जगह लेके गए, बोला बहुत फॉरेस्ट है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया भी है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं, पूरा अरुणाचल प्रदेश, इफ यू लुक एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 90% फॉरेस्ट एरिया, तो हर एरिया में ही अनटच्ड एरिया मिल जाएगा। हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद उसका क्या है कि रिसर्च के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो आप बार बार नहीं कह सकते हो कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करो। ओके, सो देयर इज सेकेंडरी क्राइटेरिया कि कुछ और चीजें होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि सम ऑफ द स्पीसीज दैट आर रेसाइडिंग देयर दे शुड हैव सम थ्रेट परसेप्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी क्राइटेरिया में जो चीजें देखी जाती है उसमें पहली चीज क्या है कि स्पीसीज में थ्रेट होना चाहिए। ओके, या फिर रेयर स्पीसीज जो कहीं नहीं मिलते हैं, एरियाज हैविंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ओके, दीज आर द एरियाज वेयर रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज आर देयर, जिनको थ्रेट भी है तो आप प्रोटेक्ट करेंगे तो उनको बचा के रख पाएंगे। दोज एरियाज जहां कोई पहुंच ही नहीं रहा है, वहां स्पीसीज को कोई थ्रेट नहीं है। तो यहां क्या है कि लोग सराउंडिंग तक पहुंच गए हैं, कोर इज अनडिस्टर्ब्ड बट सराउंडिंग एरिया इज डिस्टर्ब्ड, तो वैसा होगा। ओके, प्लस एरियाज हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल वेराइटीज, ठीक है। So write down areas having diversity of soil and microclimatic conditions. Having diversity of soil and microclimatic conditions and microclimatic conditions एंड इंडिजिनस वैरायटी ऑफ बायोटा, कुछ स्पीसीज ऐसे हो जो वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, एंड इंडिजिनस वैरायटी ऑफ बायोटा। अब इंडिजिनस का मतलब एकदम लोकलाइज्ड एरिया नहीं, माने इंडिया में मिलते हैं, इंडिजिनस वैरायटी ऑफ बायोटा। और सबसे बड़ी बात है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, तो हमने पहले ही कहा था कि दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है। तो कल्चरल का मतलब है अगर ऐसी जगह हो जिसकी पेरिफेरी में आपके ऑलरेडी ओल्ड कल्चर्स आर एग्जिस्टिंग, ट्राइबल्स आर एग्जिस्टिंग, देन दैट एरिया विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द दिस क्राइटेरिया। ए वेरी गुड मॉर्निंग सर्वर बेटा, आप थोड़ा लेट आए हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे एवरी नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है, प्रीलिम्स में आए, मेंस में आए, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। ओके, सो राइट डाउन द एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन, द एरियाज पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल or rural modes of living for harmonious use of the environment, for harmonious use of the environment, for harmonious use of the environment। okay, so these are the criterias जो आपको याद रखने हैं, 3, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन, ओके, विच लिव हु लिव इन हार्मनी विथ द नेचर, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें ये फंक्शंस इनके ये थे, क्राइटेरिया ये है। ओके, नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर, based on this we'll look at structure of the biosphere reserve, ठीक है, इन सारी चीजों को देख के, ठीक है। नाउ
पहले तो हमारा क्या होगा, वी नो दैट वन एरिया where no activity will be allowed, okay, there will be another area where a lot of activities will be done. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म गोल ही बनाया जाए. ओके, सो दिस इज कोर एरिया. इसके बाद होगा आपका बफर जोन वेयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विल बी अलाउड. ठीक है, आप टूरिज्म के लिए, रिसर्च के लिए, हर एक्टिविटी के लिए यहां जा सकते हैं. ओके, and then there will be a transition zone. Okay, then there will be a transition zone. Okay, जहां पे आपकी हार्मनी एस्टेब्लिश हो सकती है. ओके, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस विल नॉट बी डिलिमिटेड. इसका कोई बाउंड्री होता नहीं है, नो बाउंड्रीज. यानी नॉट डिलिमिटेड. अब इन एरियाज की अगर हम बात करते हैं, कोर एरिया, द फंक्शंस आर वेरी क्लियर, आपको पता है. सो इट विल बी केप्ट फ्रॉम ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, सो केप्ट अवे फ्रॉम all human interference. अगर कोर के अंदर कुछ करना है तो परमिशन लेके वो रिसर्च वर्क ही होता है. ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिकली मेड एन एरिया वेयर ह्यूमन इंटरफेरेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड. ओके, अगर इसके बफर जोन की बात करें तो भाई लोगों के पास क्या है, गाय बकरियां होती हैं, तो आपको ग्रेजिंग अलाउ करना होगा. यहां पे आपको टूरिज्म अलाउ करना होगा. ओके, रिक्रिएशनल, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहां अलाउ करनी होती हैं. ओके, हाँ डब्लू बेटा बायोलॉजी में पढ़ा है तो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो ये रिवीजन है आपके लिए, बायोलॉजी में भी ये पढ़ा जाता है. ठीक है, इन्वायरमेंट इनफैक्ट अगर आप देखेंगे दो जगह दिखाई देता है, एक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट अलग से अब पढ़ने का ट्रेंड है क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. नहीं तो अगर ट्रेडिशनली एनसीईआरटी में आप देखेंगे अप टू क्लास 10th इट इज इन ज्योग्राफी, 11th एंड 12th इट इज इन ज्योग्राफी, इट इज इन बायोलॉजी. ठीक है, दो जगह पढ़ना होता है आपको. ज्योग्राफी में डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है इसलिए पढ़ना होता है, बायोलॉजी में स्पीसीज, जेनेटिक लेवल एंड एवरीथिंग उस पर्सपेक्टिव से होता है. ठीक है, सो इफ यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम, राइट डाउन. कोर एरिया पे एक दो लाइन लिख लीजिए, बाकियों पे एक दो लाइन, सभी पे लिख लेते हैं. जबकि क्वेश्चन जो आएगा आप इस डायग्राम को भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यू विल बी एबल टू मैनेज. ओके, write down the core area must be preserved. The core area must be preserved by ensuring that there is no disturbance, from humans, full stop. It must contain suitable habitat, for the various plants and animals. It must contain suitable habitat for the various plants and animals. These are the areas
which ignite the imagination of scientific research. These are the areas which ignite the imagination of the scientific research. मतलब रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा रिसर्च में यहीं पे इंटरेस्ट है क्योंकि ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है. ओके, ए कोर जोन हैज लीगल प्रोटेक्शन. इसको अंडरलाइन करेंगे, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है ये. ए कोर जोन हैज लीगल प्रोटेक्शन and only those research activities are allowed, and only those research activities are allowed which do not harm the environment, and only those research activities are allowed which do not harm the environment, comma, which do not affect natural processes, which do not affect natural processes. ठीक है, इसका मतलब रिसर्च करने के लिए दूसरे जंगल का एक जानवर पकड़ के लाया और छोड़ दिया कि क्या इफेक्ट है देखेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं. ओके, ऑल द रिसर्च हैज टू बी डन इन द एम्बिट ऑफ दैट एरिया ओनली. बाहर का दो मुर्गा पकड़ के लाया और छोड़ दिया कि दूसरे मुर्गों के साथ बिहेवियर देखेंगे, ये अलाउड नहीं है. आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं. ओके, this area has to be kept away from all human pressures. This area has to be kept away from all human pressures external to the system. All human pressures external to the system. यानी बाहर से आप कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है, तो ह्यूमंस का प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि हमने जाके घर बनाया तभी प्रेशर है. ठीक है, जो इनहेबिटेंट्स वहां के है ही नहीं उनको ले जाके छोड़ दिया तो वो भी प्रेशर है. ओके, नेक्स्ट इज बफर जोन. पुट द हेडिंग बफर जोन. its usage and activities are managed in a way as in the core area, as in the core area, as in the core area, but certain activities are allowed, but certain activities are allowed like limited recreation. ठीक है, रिक्रिएशन का मतलब पिकनिक मनाया और बहुत सारा प्लास्टिक फेंक के आ गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चेक है, लिमिट्स हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं. लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म, ग्रेजिंग, फिशिंग, tourism, grazing, fishing. Full stop. No activity is allowed in this area. No activity is allowed in this area which can disturb the core. No activity is allowed in this area which can disturb the core. ठीक है, यहां डीजे ले जाके बजाने लग गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोर एरिया के जानवर को क्या है, साउंड पॉल्यूशन होगा. ठीक है, हमारा पिकनिक है तो हम यहाँ पे म्यूजिक बजाएंगे, यू कैन नॉट डू दैट. ओके, इनफैक्ट गाड़ियों का भी नॉइज लेवल्स मेंटेन होता है, चेक किया जाता है. Here the research and educational activities are encouraged. Here the research and educational activities are encouraged. And all natural activities by humans, all natural activities by humans are allowed if they do not adversely impact
if they do not adversely impact okay, full stop, change the para and write in the core area and buffer zone, in the core area and buffer zone, manipulative macro management practices are used. In the core area and the buffer zone, manipulative macro management practices are implemented or used. इसका क्या मतलब है? मैनिपुलेटिव, अभी हम कह रहे थे कि कोर एरिया में कुछ नहीं करेंगे, अब फिर कह रहे हैं मैनिपुलेट करेंगे. सो मैनिपुलेटिव मीन्स कि दोज एरियाज जो खराब हो गए हैं, ओके, दोज एरियाज विच आर डिग्रेडेड विल बी डूइंग सम एक्टिविटी टू रेस्टोर इट. ठीक है, वो मैनिपुलेशन है कि ऑलरेडी डिग्रेडेशन हो गया है, मे बी विल प्लांट सम मोर सैपलिंग्स, स्पेसिंग उनकी बढ़ा दिया, कुछ किया ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए. दैट इज अलाउड. ओके, सो राइट डाउन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एरियाज आर यूज्ड. The experimental research areas are used for the understanding of the patterns and processes of the ecosystem, for the patterns and processes of the ecosystem, and the degraded landscape is restored ठीक है. नाउ ट्रांजिशन जोन. ठीक है, इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन जो कर सकते हैं वो यही है कि उसका रेस्टोरेशन वर्क कर दिया एंड ऑल. ओके, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व is not delimited, and it is a zone of cooperation, and it is a zone of cooperation where conservation, management and traditional knowledge is applied. Conservation, management and traditional knowledge is applied. Where traditional knowledge is applied to protect the environment. ठीक है, यहां पे क्या है, घर, सेटलमेंट्स, क्रॉप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज अलाउड. ओके, इन द ट्रांजिशन जोन देयर इज सेटलमेंट, क्रॉप फील्ड्स, मैनेज्ड फॉरेस्ट्स. ठीक है, जिसे आप बागीचा कहते हैं, मैनेज्ड फॉरेस्ट्स एटसेट्रा, माने वो गांव उसके अंदर आ जाते हैं. ठीक है, नाउ अब इसका अंतर कैसा है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है, अभी आप टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो टाइगर को ही बचा रहे होते हैं, यहां क्या आप सबको बचा रहे हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में या ह्यूमन एलिमेंट भी इंक्लूड है. आप सेंचुरीज में सिर्फ प्लांट को, नेशनल पार्क्स, वहां पे क्या है, ह्यूमन एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट यहां ह्यूमन एलिमेंट भी इंक्लूडेड. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है,
आपको ये ध्यान देना है कि जो न्यूज में है सिर्फ वही पढ़ लेंगे। इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो इस साल जो न्यूज में है वो पढ़िए, अगले साल देने वाले हैं तो वो पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पकड़ के पढ़ने लगेंगे। ओके, दैट विल नॉट बी प्रूडेंट ऑन योर पार्ट। वो आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होगा। सो एवरीबडी इज क्लियर? यहां कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत? डब्लू, सर्वर, गोविंद, प्रियांशु, गंगेश, रेणु, अभिषेक, आस्था, भूमि, पूजा, पुष्पांजलि, ओके गोविंद, दैट इज डिवास्टेटिंग। यहां दिल्ली में भी कभी भी भूकंप आ सकता है। न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस्ड ए क्वेक ऑफ 7.1 मैग्नीट्यूड, दैट्स रियली बैड न्यूज। ओके, ग्रेट गोविंद, डब्लू, ठीक है, गंगेश, ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा न्यूज है कि न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक आ गया है। ग्रेट, क्लियर है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में आपने सुना है? ये प्रोटेक्टेड एरियाज पे ही हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सुना है? ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा है आपने? ये सारी चीजें न्यूज में आती रहती हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर कर दिया, तो ये है क्या आखिर? व्हाट इज दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ओके, सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? when an area is declared as world heritage site by UNESCO or it is included in the heritage list, an area included in heritage list by UNESCO। लेकिन इससे क्या समझ में आता है? इससे पता चल रहा है ये क्या है? हाँ गंगेश, ठीक है, यू आर क्लोज। अभिषेक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, अब हेरिटेज जब भी आप कहते हैं, हेरिटेज क्या है कि ये तो नहीं हो सकता है। ओके, हेरिटेज इज एसोसिएटेड विथ सम लेगेसी, और लेगेसी क्या है? इट हैज टू बी ओल्ड, पुराना होना चाहिए। ओके, सो जब टर्म आप देखते हैं, सो एनीथिंग विच हैज आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। ठीक है अभिषेक, आपने कहा आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, लेकिन किस चीज का? इट हैज अ लेगेसी ऑफ इट्स ओन, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। ठीक है गोविंद, इट हैज हाई वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, the cultural treasures and natural systems
ठीक है, जिसकी कल्चरल वैल्यू हो या फिर नेचुरली उसकी बहुत हाई वैल्यू हो। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू दीज टू थिंग्स। ओके, यूनेस्को डिक्लेयर्स इट, तो हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो अगर डिक्लेयर होता है तो आपको ये करना होगा। ओके, द फर्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स was published by UNESCO in the year 1978। ठीक है, 1978 में पहली बार पब्लिश किया गया था, उसके बाद से होता रहता है, हमेशा न्यूज में है, आपको पता ही है। ओके, सो देयर वाज अ कन्वेंशन in 1972 and in that this heritage list and publishing of the heritage list was decided। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। बेसिकली इफ द क्वेश्चन विल कम, या तो वो इसमें से आ जाएगा या फिर जो न्यूज में है उस पे जगह को मैच द फॉलोइंग टाइप का आएगा। ओके, सो राइट डाउन the heritage sites are the sites, the heritage sites are the sites under the convention, under the convention concerning, under the convention concerning protection of the cultural and natural, protection of the world cultural and natural, protection of the world cultural and natural heritage, 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 full stop. This convention was adopted by UNESCO in the year 1972, was adopted in the year 1972, but was implemented in the year 1975, but was implemented in the year 1975, full stop. In the year 1978, in the year 1978, the first list of World Heritage Sites was published. In the year 1978, the first list of World Heritage Sites was published. Okay? अब क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज को नेचुरल हेरिटेज कह रहे हैं और किसी को कल्चरल हेरिटेज कह रहे हैं, ओके, सो सम क्राइटेरिया हैज टू बी देयर। किसी को भी पकड़ा, क्योंकि हर आदमी को अपना कल्चर क्या है वो हेरिटेज ही लगता है, लेकिन वर्ल्ड को वो लगेगा कि नहीं, वर्ल्ड को लगना चाहिए या नहीं, वो कुछ क्राइटेरियाज ये डिसाइड करती है यूनेस्को। ओके, बेस्ड ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट नेचुरल पे लिख लीजिए, द नेचुरल हेरिटेज साइट्स, द नेचुरल हेरिटेज साइट्स need to fulfill 4 criterias, needs to fulfill 4 criterias. First one, this area should reflect, this area should reflect outstanding example of Earth's recorded life,
outstanding example of Earth's recorded life. रिकॉर्डेड मैंने कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पत्थर पेड़ पौधे के फॉर्म में वहां प्रिजर्व्ड हो. ओके, अर्थ recorded life and its geological processes and its geological processes. ओके, तो यहां 4 क्राइटेरिया है, कल्चरल वाले में 6 क्राइटेरिया है. कभी कभी बहुत सिंपल चीजें भी दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, तो ये यहां 6 and 4 लिख लीजिए. ओके, एंड दीज क्राइटेरियाज कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स 1 2 3 4, यही दे देंगे चारों. तो आंसर ऑल ऑफ द अबव. ओके, this area should provide excellent example of the ongoing biological and evolutionary processes. Biological and evolutionary processes. Third point, this should represent the natural phenomena that are rare, unique, superlative. Rare, unique, superlative. Rare, unique, superlative, or an outstanding beauty, ओके, और एन आउटस्टैंडिंग ब्यूटी. ठीक है, जाते ही मेस्मराइज्ड हो गए कि यहीं बस जाते हैं, दैट काइंड ऑफ ब्यूटी. ओके, फोर्थ, should act as a habitat for rare endangered animals. Should act as an habitat for rare endangered animals. Rare endangered animals or plants, or they are the sites of exceptional biodiversity, ओके. अब कल्चरल क्या होगा, ह्यूमंस ने कितना अच्छा मंदिर बनाया, कितना अच्छा आपने क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, स्ट्रीट्स कैसी थी, स्कल्पचर्स कैसे थे. ओके, तो कल्चरल में अगर हम बात करते हैं तो यूनिक ह्यूमन एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला, दिस शुड शो दैट द ह्यूमन पोटेंशियल वाज इमेंस व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, some of the sculptures. ठीक है, so write down, to represent a masterpiece of human creative genius. cultural वाले में, to represent the masterpiece of human creative genius. To represent the masterpiece of human creative genius. Next point, an area that exhibit
important changes in the human values, that exhibit important changes in the human values over a span of time, over a span of time, or within a cultural area, or within a cultural area of the world, of the world. And on the development front, and on the development front, represents an architecture, represents an architecture, technology, architecture, technology, monumental arts, monumental arts, town planning, town planning, or landscape design, town planning, or landscape design, town planning, or landscape design, or landscape design. और लैंडस्केप डिजाइन. ठीक है. थर्ड वन, अब ये 6 क्राइटेरिया क्या है, 2000 से 5 से पहले के हैं, वो मैं दे रहा हूं. फिर हम देखेंगे कि +4 was introduced, 6 criteria +4 more in 2005. ठीक है. बट आपको ये पढ़ना होगा क्योंकि 10 में से 4 आपको कोई भी 4 दे देगा वो, तो आपकी मजबूरी है, इसको याद रखना ही होगा. ओके. थर्ड पॉइंट लिखिए. टू बी अ यूनिक, टू बी a unique or at least exceptional testimony, a unique or exceptional testimony to a cultural tradition, to a cultural tradition, or to a civilization, to a cultural tradition or to a civilization which is living, which is living or which has disappeared, which is living or which has disappeared. For example, Harappan civilization disappear हो गया है, but that is a heritage. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है. राखी गढ़ी मोर रिसेंटली जो आइडेंटिफाई हुआ है इंडिया में, यहां क्या है, एविडेंस है बहुत फुल फ्लेजेड एक्सेप्शनल सिविलाइजेशन की. ओके. तो कल्चरल हेरिटेज में ऐसी जगहों को धीरे धीरे इंक्लूड किया जा रहा है. ओके. फॉर एग्जांपल, दोज एरियाज वेयर मायन सिविलाइजेशन वाज देयर, एज़टेक सिविलाइजेशन वाज देयर. ठीक है. दे हैव बीन लॉस्ट, लेकिन फिर भी उन्हें हेरिटेज मान के अब प्रोटेक्ट कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंट, अब ऐसी कोई बिल्डिंग जो एक्सेप्शनल हो. ठीक है. आर्किटेक्चर पे हमने देखा है, लेकिन वो चेंज इन द मोड ऑफ लाइफ के हिसाब से हमने देखा था. बट देयर इज वन थिंग दैट रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन. ठीक है. तो वैसे आर्किटेक्चर को भी इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. ए सडन टाइम इन हिस्ट्री जब पिनेकल पे हो आर्ट का फॉर्म, आर्किटेक्चर का फॉर्म. ओके. ऑल दोज थिंग्स कैन बी गिवन. To be an outstanding example, to be an outstanding example of a type of building, of a type of building, architectural, architectural or technological ensemble, architectural or technological ensemble, architectural or technological ensemble, or a landscape, or a landscape that illustrates a significant stage in human history, or illustrates a significant stage
in human history. Okay, significant stage in human history. फिफ्थ पॉइंट, कोई ह्यूमन सेटलमेंट हो, ठीक है, सिर्फ सेटलमेंट को हेरिटेज डिक्लेयर कर देंगे, जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही करें, जैसा कि अभी हड़प्पा का एग्जांपल दिया, हड़प्पा इज अ सिंगल सेटलमेंट, ठीक है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है, मोहनजोदड़ो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है, लोथल, बट दीज आर स्पेसिफिक सेटलमेंट्स, ठीक है. To be an outstanding example of a traditional human settlement, to be an outstanding example of traditional human settlement, land use or sea use, land use or sea use, which is representative of a culture, which is representative of a culture, which is representative of a culture or cultures, which is representative of a culture or cultures or human interaction, or human interaction with the environment, with the environment, with the environment, especially when it has become vulnerable, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible changes, under the impact of irreversible changes, ठीक है. Sixth point, under the impact of irreversible changes. Now the sixth point, to be directly associated with, next point, to be directly associated with events or living traditions, ठीक है, आर्टिस्टिक दीवारों पे पेंटिंग बनाई हुई है, खोद के बनाया हुआ है, that kind of thing, okay, to be directly associated with events or living traditions, with the events or living traditions, comma, with ideas or with beliefs, with ideas or with beliefs, comma, with artistic and literary works, with artistic and literary works, किसी के बारे में लिखा गया हो बहुत अच्छे से, ठीक है, with artistic or literary works of outstanding universal significance, of outstanding universal significance, ठीक है. अब इस क्राइटेरिया के साथ क्या है, इट कैनॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, बाकी जो भी आपने अभी तक लिखा, ओके, ऑल ऑफ देम कैन बिकम ए इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, लेकिन जो सिक्स्थ वाला आपने लिखा है, ये सिंगल क्राइटेरिया यूज करके हेरिटेज डिक्लेयर नहीं किया जाता है. तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द क्राइटेरिया विच कैन नॉट बी सिंगली यूज्ड टू डिक्लेयर ए कल्चरल हेरिटेज साइट, वो ये पॉइंट है, ठीक है. तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, द सिक्स्थ क्राइटेरिया, द सिक्स्थ क्राइटेरिया should preferably used in conjunction with other criterias, should preferably used in conjunction with other criterias, ठीक है. इसका मतलब है दूसरे क्राइटेरिया को कंसिडर करने के बाद ये वाला भी है तो कर लेंगे, या ये वाला है तो दूसरे वाले को देखेंगे कोई और पांचों में से क्राइटेरिया हो रहा है कि नहीं. ओके, नाउ लाइक आई सेड, चार और जोड़े गए थे, सो राइट डाउन, 4 more criteria were added in the year 2005 for cultural heritage site.
4 more criteria were added in 2005 for cultural heritage site. For cultural heritage site. So write down 7 point. नेचुरल फेनोमेना को भी क्या है कंसीडर करने लगे हेरिटेज बताने के लिए. ओके, नेचुरली ही बहुत सुंदर हो और लोग वहां बसते हो, ह्यूमंस हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग आपका किया जाएगा. टू बी एन आउटस्टैंडिंग exceptional, to be an outstanding, exceptional, superlative natural phenomena, or natural beauty, having aesthetic importance. अब यहां से आपकी दिक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर जिसने भी मेमोराइज ठीक से नहीं किया तो आप नेचुरल है कि कल्चरल है इसमें गलती कर देंगे. सो यूल हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत ही क्लोज है. इसके जो 4 क्राइटेरिया हैं वो नेचुरल वाले जैसे लगते हैं. ओके, लेकिन वो कल्चरल है. ठीक है, नेचर की बात हो रही है, बट दैट इज कल्चरल वाला. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 3 बाकी सेम है नेचुरल वाले. ठीक है, एग्जैक्टली सेम जो नेचर वाला है वही है. इसके बाद का ये वाला है अर्थ रिकॉर्डेड लाइफ एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. ओके, फोर मोर क्राइटेरियाज वर एडेड. बाकी 3 इसमें से ही है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, राइट डाउन, नीचे लिख लीजिए. सिंस 2005 these 10 criterias since 2005 these 10 criterias are used for determining the heritage sites and UNESCO does not specifically publish them as natural or cultural heritage sites. ठीक है, अब क्या है, यूनेस्को ये नाम यूज नहीं करती है. ओके, लेकिन आपको क्राइटेरिया क्या है, नेचुरल एंड कल्चरल, ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही लिखती है अपनी पब्लिश करने में. ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके, क्योंकि हम लोग क्राइटेरिया भेजते हैं. ओके, और ये क्राइटेरियाज पहले अलग अलग यूज होते थे.
बिकॉज ऑफ दिस रीजन अभी भी आप न्यूज में पढ़ते हैं नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, बट एज फार एज यूनेस्को इज कंसर्न, ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर वाले भी क्या लिखते हैं कि नेचुरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है। यूनेस्को ऐसा नहीं करती है अब, सिंस 2005 दे हैव स्टॉप्ड इट, बट अभी भी ओल्ड वेज यूज होते हैं। तो ये आपको पता किस लिए होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी विल गिव ए स्टेटमेंट दैट यूनेस्को पब्लिशेस इट्स रिपोर्ट फॉर डिफरेंटली फॉर नेचुरल हेरिटेज साइट एंड कल्चरल हेरिटेज साइट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, एंड एक बार पूछा भी गया है, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और बच्चे क्या है कि विवादित क्वेश्चनों में डाल दिया गया था, बहुत हल्ला हुआ था कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। तो ऐसी चीजों से बचेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स स्टिल राइट नेचुरल हेरिटेज साइट, कल्चरल हेरिटेज साइट। ओके, जो एक आपको मैंने लाइन लिखवाई है 1.7 वाला, उसकी लैंग्वेज एग्जैक्टली इसके जैसी नहीं है, बाकी 3 पॉइंट्स की एग्जैक्ट वही है। ओके, तो थोड़ा सा एक पॉइंट में चेंज आने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल गया है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे हैव इंक्लूडेड द नेचुरल वाला इनटू द कल्चरल वाला, एंड देन दे स्टॉप्ड पब्लिशिंग नेचुरल और कल्चरल, ये वन सेट ऑफ क्राइटेरिया कर दिया, ठीक है, ये वर्ड ही यूज करना इन्होंने फिर बंद कर दिया। सो वन सेट ऑफ 10 क्राइटेरियाज। ठीक है, बट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है नेचुरल और कल्चरल, तो पहले 6 इसके और पहले 4 ये स्टेटमेंट्स आएंगे, वो याद होना चाहिए। ऑल क्लियर एवरीवन? सो बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल पे हमने पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, बट चांसेस कम है कि यूपीएससी में आपको डायरेक्टली डेट पूछ लिया जाए, बट यू नेवर नो। ओके, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट डेट टू 22 मई, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, इफ सम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट्स, ऐसे डेट्स 5 जून, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, तो ये सब आपको याद रखने होंगे, बट यूपीएससी चांसेस आर लेस। ठीक है, नाउ विल लुक एट सम स्पेसिफिक कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब द पॉपुलर वंस, जिसके वजह से बड़े जानवर तो बचा लिए गए, बट हम बायोडाइवर्सिटी को ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ओके, so we'll talk about some of the conservation efforts of the government of India. And the most successful and the most popular one is Project Tiger, okay, which has increased the man-animal conflict to such a level that more than 300 people were killed only in Maharashtra. ठीक है, एक ही स्टेट में बाघों ने एक साल में एट एन एवरेज रोज एक को मार दिया, समझिए। ठीक है, सो प्रोजेक्ट टाइगर। हमारे यहां आज की डेट में बहुत सारे टाइगर हैं, लॉट ऑफ टाइगर्स आर देयर, बट स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड टू द स्टेज वेयर वी वेर ए सेंचुरी अगो। ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग 40,000 टाइगर थे एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, आज हम 4,000 3,000 गिन के बहुत खुश हो रहे हैं, बट दिस वॉज
something that was around 40,000 of them. ठीक है, तो इसीलिए आपने देखी होंगी बहुत सारी मूवीज भी बनी है मैन ईटर्स के ऊपर. ठीक है, ब्रिटिश ने भी लिखा है बहुत सारा मैन ईटर्स के ऊपर. द टाइगर पॉपुलेशन वॉज सो मच कि पब्लिक कहीं जा रही है तो एक दो उठा के ले जाते थे. ठीक है, खा जाते थे, बुरा होता था. बट ये है कि ऐसा हुआ है, कांट हेल्प. ओके, बट टुडे इफ इट इज हैपनिंग इट इज अ कंसर्न. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं. स्टिल वी आर फेलिंग टू सेव. एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत ही डेंस जंगल था, तो आपको पता ही नहीं चलता था, तो मारे जाते थे लोग. सो दिस प्रोजेक्ट टाइगर इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट टू सेव द टाइगर. ये कब आया था? ये तब आया था जब ओनली 1800 वेर लेफ्ट. ओके, इफ वी टॉक अबाउट 1900, there were 40,000. (1973) 1800. ओके, अब यहां क्या है? नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एक्शन, केम अप विथ this project. And this year is important. ठीक है, 1973. साल कौन सा चल रहा है? 23. 50 साल हो गए. ओके, 50 years of Project Tiger. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, इस साल जितने लोग भी दे रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू विथ मोस्ट ऑफ द पॉपुलर थिंग्स. ठीक है, अगर किसी का 50 साल हो रहा है, 75 ईयर्स हो रहे हैं, 100 हो रहा है, 150 हो रहा है, that kind of things you have to focus, because UPSC has a tendency of asking questions on that. So definitely you can find a question on Project Tiger in prelims. ठीक है, 50 साल पूरे हो रहे हैं, या फिर सेलिब्रेशन होने के बाद अगर है तो 24 वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ओके, दोज हु आर अपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स इन 23 और 24, फॉर बोथ ऑफ यू इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, अब यहां क्या है? दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है मैंने, इसका मतलब आपको समझना है दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. ओके, एंड व्हेन द सेंटर इज डूइंग, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मैसिव सक्सेस स्टोरीज इन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. ठीक है, अब इसमें किया क्या होगा, क्या पर्पस होगा? प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए तो क्या क्या किया होगा, क्या करने का सोचा होगा? इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या होगा? डब्लू, रेणु, गोविंद, अभिषेक, गंगेश, पुष्पांजलि. ठीक है, दिस इज समथिंग कि हर एक का पॉइंट याद करेंगे, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, ऐसा नहीं है. विल कम टू सर्टेन कॉमन पॉइंट्स, जो क्रोकोडाइल के लिए भी कर रहे होंगे, घड़ियाल के लिए भी कर रहे होंगे, डियर के लिए भी कर रहे होंगे. You just have to have the better understanding of the things that the government will do in order to protect some of the animals. ठीक है, यहां जानने के लिए एक्स्ट्रा ये है कि कुछ को सेंटर प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ को स्टेट ही प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये हमको पता होना चाहिए. बट बाकी क्या करेंगे? टेल मी. द पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है
एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट मैसिव वंस. ठीक है, हमारे इंडिया के टाइगर्स काफी बड़े होते हैं, लायंस इनसे छोटे होते हैं. हाँ, वाइल्ड लाइफ नहीं रेनू बेटा, टाइगर कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ मैंने टोटल से मतलब नहीं है. ओके, टाइगर के लिए जो जरूरी है, मेंटेनिंग द टाइगर पॉपुलेशन. प्रोजेक्ट टाइगर है मतलब इसकी पॉपुलेशन, मेंटेनिंग इट्स पॉपुलेशन. पहला एजेंडा है मेंटेन करना, बढ़ना बाद में देखेंगे, और कम ना हो जाए. ओके, हाँ गंगेश डब्लू, व्हाट मोर. अब मेंटेन करने का भी पर्पस रखा है गवर्नमेंट ने. ऐसा नहीं है कि नेचर के लिए जरूरी है इसलिए हमने टाइगर को बचाया है. ठीक है, द गवर्नमेंट इज नॉट ओनली interested in maintaining its population because it has relevance for biodiversity. हाँ, फूड चेन डब्लू बेटा. सो दिस इज इकोलॉजिकल. आप जो भी बातें कर रहे हैं, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल वैल्यू. all of you are talking about the ecological value, but the government is considering the aesthetic value. ठीक है, शेर है तो टूरिज्म भी बढ़ेगा, देखने में अच्छा लगता है. इट्स इकोनॉमिक वैल्यू. सो कंजर्वेशन एजेंट ओनली मेंट फॉर इकोलॉजिकल वैल्यू. ऐसे तो सबको बचाना चाहिए. अगर आपके दिमाग में सिर्फ इकोलॉजी है तो चींटी ही क्यों मरे, शेर ही क्यों बचे. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट डजंट हैव ओनली दिस पर्पस. ओके, कल्चरल सिग्निफिकेंस है बहुत सारे. देवी देवताओं की पूजा होती है जो शेर पे बाघ पे बैठे हुए होते हैं. ओके, दिस इज बाघ, टाइगर इज बाघ. ओके, शेर इज लायन. सो कल्चरल वैल्यू. एंड फाइनली द साइंटिफिक रिसर्च value. Okay, so the protection that is given is not given only because they are important for the biodiversity. ठीक है, क्योंकि आप बायोडाइवर्सिटी की सिर्फ बात करेंगे, पीपल विल नॉट प्रोटेक्ट. अगर इतना कंसर्न होता लोगों को इकोलॉजिकल वैल्यू का, तो मारते ही क्यों. वाई दे वुड हैव किल्ड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. दे हंटेड ऑल द टाइगर्स. ठीक है, राजा मार रहे हैं, प्रजा मार रही है, सोल्जर मार रहा है, कोई भी मार रहा है. ओके, तो वो सिग्निफिकेंस को सिर्फ इंस्टिगेट करके आप नहीं बचा सकते थे टाइगर को. ओके, नाउ सो राइट डाउन. प्रोजेक्ट टाइगर had certain objectives. Project Tiger had certain objectives. Point number A, to maintain the population of tigers in India. To maintain the population of the tigers in India for ecological, aesthetic, economic, cultural and scientific value. To maintain the population of the tigers in India for ecological, aesthetic, economic, cultural and scientific value. Scientific value. Second point, to preserve for all times. 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 The area of such biological importance. The area of such biological importance as a national heritage.
जहां प्रोजेक्ट टाइगर है उस एरिया को ही नेशनल हेरिटेज मान लिया जाता है. ओके, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज अ नेशनल हेरिटेज for the benefit and education of the people, for the benefit and education of the people. Okay, so there were 8 subspecies of tigers. ठीक है, टाइगर की नेचर में 8 स्पीसीज थी, 5 आर स्टिल देयर, 3 got extinct. ठीक है, 3 वेराइटीज जो है वो अब नहीं है दुनिया में, आखिरी वाले को भी मार दिया गया है. ठीक है, कैस्पियन, बाली, बाली टाइगर एंड जावन टाइगर. These 3 varieties are extinct. अब 5 varieties हैं. ओके, सबसे मैसिव जैसा मैंने बताया बंगाल टाइगर जो हमारा है. ओके, so the Bengal tiger, the most popular one. Okay, now South China, Indo-Chinese, इंडो चाइनीज, ये वाली वैरायटी आपको बॉर्डरिंग स्टेट्स में मिल जाती है. ओके, बट द मोस्ट मैसिव वन इज द बंगाल टाइगर. ये बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, मतलब देख के ही आपको डर लग जाएगा. ये इतने बड़े होते हैं कि अगर आपने नजदीक से नहीं देखा है और अगर आपने जू में देखा है तो आपने बहुत बड़ा नहीं देखा होगा. ओके, आपकी उंगलियों से लंबे उनके नाखून होते हैं, दांत होते हैं, चेहरा इतना बड़ा होता है. ठीक है, और आंखें ऐसी होती हैं कि आप वो पिंजरे में भी रहेगा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप मतलब वो खतरनाक है, हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी. ओके, सुमात्रन एंड साइबेरियन. साइबेरियन टाइगर्स आर ऑल्सो स्टर्डी. ठीक है, पहाड़ियों पे रहते हैं तो ये भी ताकतवर होते हैं. सो टुडे विल स्टॉप हियर ओनली. और टाइगर रिजर्व एंड ऑल कल हम पढ़ेंगे. प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगर रिजर्व इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसमें भी कोर जोन, बफर जोन एंड एवरीथिंग, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, इसको हम डिटेल में देखेंगे. द रीजन इज कि 50 साल हो गए हैं. ठीक है, this was launched in 1973 and you are in 2023. so all the people, आपको मेंस में भी टाइगर कंजर्वेशन मेजर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, 24 के प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है. 50 साल पूरे हो रहे हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. आई होप दैट you can manage these things, क्योंकि there is no end to information. लेकिन जितना मैंने बताया उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप easily manage कर पाएंगे questions को. okay, so go through this thing because some of the criteria जो हमने देखे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, you'll have to invest time to mug up. नहीं तो वो नोटबुक में रहेगा, एग्जाम में भी आएगा और आप नहीं कर पाएंगे. okay, so make sure that you are remembering this thing. रिविजन अच्छा चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या है कि नेचर की ही बात हो रही है. ठीक है, तो अभी आपको लगेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क का हिस्सा है और पता चला आपने नेशनल पार्क में पढ़ा था, सेंचुरी में पढ़ा था, क्योंकि सिमिलर सी चीजें हैं. तो रिवीजन जिसका कम होगा उसको दिक्कत होगी, गलतियां आएंगी. एंड एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आप कैसे भी मान के चलिए. एंड सब द पास्ट का देखते हैं, 27, 34, 32. okay, 34 questions were asked in one of those years. And if they ask more than 25, and some of the people who are not revising properly, okay, when they'll come back home, they'll
ओपन द नोटबुक दे विल क्राई देयर ओनली, ठीक है। तो रोने वाले बच्चे नहीं बनेंगे, जो पास हो गया वो बच्चा बनेंगे। पास होके भी रोते हैं लोग, खुशी के आंसू, उसका ट्राई करेंगे। ओके डब्लू बेटा नाम लिख दिया है मैंने, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, इस साल इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ भी ले, ठीक है। बट फैक्ट्स, सच काइंड ऑफ फैक्ट्स दे डोंट यूजुअली आस्क, ओके। बट 50 ईयर्स हो रहा है तो कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है। नोट डाउन एंड रीड, ओके। So I'll stop here. Tomorrow we'll continue with some of the conservation measures by the government only. Okay. So everyone stay healthy, stay blessed. Thank you. Thank you very much.